नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। करनाल की घटना पर सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने करनाल हिंसा के पीछे पंजाब का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं के प्रदर्शन में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन पंजाब के नेताओं ने माहौल खराब किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेता राज्यपाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाया। मेरे को त्याग पत्र मंगन वाले जिन्होंने ना तुसी लिया है वो कौन होंगे मेरे सिर ते? मैं उन्होंने की मना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਫਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करांगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को वार्ता के जरिए समस्या को सुलझाना चाहिए, लेकिन किसान बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं। चूंकि जब तक वो बैठे नहीं, आपस में बातचीत ना करें, तब तक हमने तो केंद्र को अपनी जो बातें करनी होती है, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह के सुझाव होते हैं। लेकिन केंद्र के लोग भी तब कहते हैं ना कि सामने वाले बैठे तो ये सुझाव के ऊपर हम आगे कुछ करें। आज ओपन प्लेटफॉर्म पर सुझाव देने का भी अर्थ नहीं है। इसलिए नहीं अर्थ नहीं है कि इसको सामने वाला कोई आए तो सही बात करने के लिए। हमने कितनी बार इनवाइट किया कि आओ बैठो भाई, को रास्ता निकालते हैं। इनफॉर्मली हमारे साथ बैठ जाओ, फॉर्मली तो केंद्र के साथ ही बैठेंगे। इनफॉर्मली भी कोई हमारे साथ कोई एक आध आता भी है बात करने के लिए, हम बात करवाते हैं तो सामने वाले ये कहते हैं कि भाई सीएम के हाथ में क्या है। अभी हमें पता, उन्हें पता कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में उनसे हमारे संबंध तो हैं, हम बात तो कर सकते हैं। लेकिन इतना अविश्वास की भावना से समस्याओं का हल नहीं हुआ करता। और ये अविश्वास इसलिए है कि सामने वालों को हल नहीं निकालना, राजनीति करनी है। अब कुछ लोग उन्हीं में से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, सब राजनीतिक मंसूबे भी तो सबके पता ही है ना। इसलिए इतना आसान और इतना सहज जितना हम बैठ के सोचते हैं इतना ये है नहीं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों से मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि और खुलेंगी। भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंद ही करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसको वाइंड अप करते, हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी केंद्र सरकार केवल 2 फसलें गेहूं और धान
यही खरीदते हैं। हम 10 फसलें खरीदते हैं और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर। कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है, ना पंजाब है। पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में। हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा, 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से। वहीं करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की वजह से कई रास्ते जाम है। कस्सी और फावड़ा लेकर किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी पर हमला करना किसानों को राइट नहीं है। उपद्रव करने वाले लोग किसान नहीं थे, किसानों को बदनाम करने वाले उपद्रवी लोग थे। मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा किसानों के साथ है और उनकी फसल भी सुरक्षित है। 8 महीने से लगातार किसानों का विरोध चल रहा है। किसी मंत्री को काले झंडे दिखाना, किसी विधायक के कपड़े फाड़ना या फिर किसी मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर पहुंचकर काले झंडे दिखाना प्रदर्शन नहीं कहलाता है। काम करे, किसान है, प्रदर्शन करे, अपने प्रदर्शन पर रहे, कोई मना थोड़ी करा है। पर किसी पर जाके पुलिस के अधिकारी पर लाठी, इस तरह के फावड़े, कस्सी लेके चढ़ जाना, उसे मारने का प्रयास करना, किसानों को कभी दायित्व करना। किसान कभी सेना के जवानों को या पुलिस कर्मचारियों को कभी नहीं मारता। और मैं पहले मैं कह चुका हूँ, इसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो लोग किसान भी नहीं हैं और किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विनती है उन लोगों से, आप किसानों को बदनाम करें और किसान समझता है, किसान मोदी और मनोहर के नेतृत्व में किसान की जो फसल है वो सब सुरक्षित है। और किसानों के लिए मोदी जी ने जो करा है वो हरियाणा देश के किसी प्रधानमंत्री ने करा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो करा है, हरियाणा के इतिहास में कोई किसान नेता बनता हो जो मनोहर ने किया, वो हरियाणा के इतिहास में कोई आज तक कर नहीं पाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों से वार्ता की एक बार फिर पहल करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस समस्या का हल वार्ता से ही निकल सकता है। किसी भी चीज का समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान है, और वो ये कि किसानों का जो मुद्दा है इस पे संवाद शुरू किया जाए। जो संवाद बंद हो गया था 26 जनवरी के बाद, उसको शुरू ना करना, ये किसानी का भी नुकसान है, ये सरकार को भी कोई इसका बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जब खेती को नुकसान होगा, किसान परेशान होगा, सरकार अपनी व्यवस्था बनाने में नाकाम होगी, तो अल्टीमेटली आखिरकार ये देश का नुकसान है। और इसको आप किसी भी तरीके से, यू कैन नॉट रिमेन ए साइलेंट स्पेक्टेटर कि आप देखते रहो। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए मेरा अपना ये मानना है कि आज भी मैं ये कहता हूँ कि आप कितना ही कुछ करो, लेकिन जब तक बात नहीं होगी समाधान नहीं होएगा। 3 कानून हैं, उन तीनों कानूनों की जो बेयर एक्ट्स हैं, जो कॉपीज़ हैं, जिसकी नोटिफिकेशन हुई है, वो किसान संघर्ष समिति जो भी है, ये क्या बोलते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, इसको सौंप दें। इनको कहो भाई ये हमने तो ये बनाया, आप बताओ क्या है। तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से संवाद शुरू करने का एक तरीका है ये। और जब संवाद होता है तो फिर बातें खुलती भी हैं और निराकरण की तरफ भी जाती हैं। ये है। अब अगर सरकार अपनी ज़िद पे है या किसान अपनी ज़िद पे हैं, तो मुझे नहीं लगता अब 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद ये जो स्टैंड है ये काम दे सकता है। और इसको मिटाने का एक ही तरीका है कि हम ये मान के चलें कि ये कहीं ना कहीं इस पे जो विरोध है इन तीनों कानूनों का, तो उसके कारण तो होंगे ना। उन कारणों को सुन लो आप और उनका समाधान उनसे पूछ लो, और जो आपका पक्ष है आप अपना बताओ कि समाधान ये नहीं है, ये है।
राज्य सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब किताब जनता के सामने रखा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2500 दिन से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद था। जब हम सत्ता में आए तब हमने इसे सुधारने का संकल्प लिया। मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई। ये सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं। उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में सिफारिश पर पहले नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब मेरिट के आधार पर और काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं सीएम विंडो पर भी जो शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई थी उससे निपटाया जा रहा है और अब सेंट्रलाइजेशन पर सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। कि मेरे तो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ अपने 2500 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म। लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे आईएएस के, एचसीएस के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहां से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो एचसीएस लगाने हैं साहब, फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 एचसीएस हर साल लगा दिए जाते थे। एक आईएएस हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों, कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य एचसीएस बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा। हमने कहा बंद करो सब। हमारे पिछले 5 साल के 5 ही आईएएस मैंने नहीं लगाए। 5 आईएएस चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट यूपीएससी को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम आईएएस लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है मान लो लोकल हल होने वाली नहीं है तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं,
चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है अपने डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। टोक्यो पैरालंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों को जलवा दिखाई दे रहा है। हरियाणा के लाल सोनीपत के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित ने 68.55 मीटर जैवलिन फेंक कर न सिर्फ गोल्ड जीता है बल्कि पैरालंपिक्स में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। सोनीपत का सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है तो टोक्यो पैरालंपिक्स में बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। तो पुरुषों के डिस्कस थ्रो में 56 फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और पदक पर कब्जा कर लिया। 8 साल की उम्र में लकवाग्रस्त होने वाली योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 का ये फेंक कर, आपको बता दें, अपना देश का नाम रोशन किया। तो वहीं सुमित अंटिल ने जैसे ही गोल्ड जीता उनके घर सोनीपत में जश्न का माहौल शुरू हो गया। घर वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाले योगेश के घर वाले काफी खुश नजर आए। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।